Okay, now we have a 9th chapter in class 9th. We have studied 8th chapter, and in 10th class you have further 8 chapters. First chapter is chemical equilibrium. In this chapter you are going to study about what is chemical equilibrium, what is dynamic equilibrium, what is reversible or irreversible reaction, law of mass action and its derivation, equilibrium constant and its different units, and the importance of chemical reactions that it takes place on a chemical equilibrium state, or what is the importance of equilibrium constant. According to your book, this chapter only required 8 periods. So we will try to complete this in 8 periods. There are two kinds of reactions, Ahmed and Safa, reversible and irreversible reactions. Irreversible and reversible reactions. Irreversible means those reactions which cannot be reversed. Irreversible, which cannot be reversed. The reaction that only move in one direction. Reaction only move in one direction. It means the reactants combine together and make product, and reaction stop. Reaction stop. This kind of reaction is irreversible. Like reaction is moving just in a one direction, reactants, all the reactants combine together and make a product, and reaction stop. Reversible reaction is opposite to it. These reactions do not go to completion. These reactions do not stop. These reactions do not go to completion, because in reversible reaction, products again react together or break and make reactants again. And make reactants again. Reactants convert into product, and product again converts into reactants. So in this way, when the rate of the forward reaction and the rate of the backward reaction becomes equal, the equilibrium state is attained. Both the rate, when the reactants are converting into product and products are converting into reactant, the rate of both the reaction, rate means speed. You study in physics, rate का मतलब होता है speed. When the speed of both the reaction, the conversion of the reactants into product or the conversion of products into reactant becomes equal, that stage is called equilibrium stage. Equilibrium is maintained. As you know, there are two kinds of equilibrium, static equilibrium and a dynamic equilibrium. In a static equilibrium, all the forces become equal and your object becomes stable, stop. Reaction stop. But in a dynamic equilibrium, the reaction is not stop, that is continue, but all the forces become equal. All the rates in a chemical reactions become equal. That is dynamic equilibrium, the moving equilibrium. So in this chapter, basically we have a keen focus on reversible reactions. Irreversible reaction, simple neutralization reaction, acid and base react together, salt and water form. So simple irreversible reaction. Reversible reaction, we have a many examples like Haber's process, formation of ammonia, contact process, formation of sulfuric acid, and many more. And on an industrial level, there is a importance of reversible reaction more than irreversible reaction. You can observe this in your daily life as you inhale oxygen and exhale carbon dioxide, and plants
take carbon dioxide and exhale oxygen. So this is the equilibrium. This is the equilibrium phenomena that is taking place in atmosphere. You are taking oxygen from plants and plants are taking carbon dioxide from you. So in this way, equilibrium is maintained in atmosphere also. Reversible reaction and dynamic equilibrium. Reversible reactions are basically maintaining the dynamic equilibrium between the reactants and the products. Let's see. Do you have a book? सफा अहमद, आप लोगों ने बुक्स ले ली हैं? नो मैम, आज लेनी है। ओके, बुक्स ले लीजिए, बिकॉज मैं मार्क करवा रही हूँ। ये डेफिनेशंस आप कॉपी में लिखिएगा और कल याद करके आपने सुनानी है। मैं आपके साथ सॉफ्ट कॉपी शेयर कर लूंगी, ठीक है? ये जो मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है बुक की, ये मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, इससे पढ़ लीजिएगा, लेकिन बुक्स ले लीजिए। सो रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम. Simply, as I said, reversible reaction are those which do not go to completion. They are continue reactants convert into product and products are converting into reactants, and they stop at that point when both the rate to move towards product and the rate to move towards reactant becomes equal. Then dynamic equilibrium is maintained and it looks like the reaction is stopped, but basically reaction stop नहीं होता, वो रिएक्शन कंटिन्यू होता है, बट उनका रेट इक्वल हो जाता है। जितनी स्पीड से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में जा रहे होते हैं, उतनी ही स्पीड से जो है वो प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में जा रहे होते हैं। तो सेम स्पीड जब हो जाती है, जब सेम रेट हो जाता है, तो देखने में ऐसा लगता है कि शायद स्टॉप हो गया रिएक्शन, बट वो स्टॉप नहीं होता, वो कंटिन्यू ही होता है, लेकिन उनका रेट एक जैसा हो जाता है, तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाते हैं। लुक एट दिस एग्जांपल। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ, दीज आर रिएक्टेंट्स। आपको पता है जो चीज से हम एरो से पहले लिखते हैं, दीज आर रिएक्टेंट्स। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्लेटिनियम और हीट की प्रेजेंस में ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड वाटर। अब ये सिंगल एरो से शो हो रहा है, सिंगल एरो, दिस इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। जब आप सिंगल एरो शो करते हैं, दैट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। Irreversible reactions are those in which products do not recombine. Products दोबारा से नहीं जुड़ते या डिकम्पोज नहीं होते और reactants में कन्वर्ट नहीं होते। सो आपको ये पहली डेफिनेशन मार्क कर लीजिए। In which products do not recombine to form reactants are called irreversible reaction. They are supposed to complete and are represented by representation की heading दे देंगे, representation की सेकेंड हेडिंग हो जाएगी, मार्क कर, ये याद रखिएगा, ये आपने कॉपी में लिखना है। योर टुडेज रिटन वर्क, रिप्रेजेंटेशन, और आपकी ये आ जाएगी रिप्रेजेंटेशन कि आप इसे सिंगल एरो से शो करते हैं। नेक्स्ट आइए, ऑन द अदर हैंड रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स आर रिकम्बाइन, अगर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और वो वापस से रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स बना रहे हैं, देन द रिएक्शन इज इरिवर्सिबल रिएक्शंस। तो ये आपकी हेडिंग आ जाएगी रिवर्सिबल रिएक्शन की, और उसकी रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग आ जाएगी, ये एक्स्ट्रा स्टेटमेंट डेफिनेटली मेंशन कीजिएगा। उसके बाद आपकी सेम रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग आ जाएगी, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो। इरिवर्सिबल रिएक्शंस को हम डबल एरो से शो करते हैं। जो डबल एरोज होते हैं वो हर एक एरो जो होता है हाफ होता है, कंप्लीट एरो नहीं होता, टू हाफ एरोज के साथ शो करते हैं। तो दिस इज डबल एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। तो ये दोनों डेफिनेशंस आपकी कॉपी में हो विद रिप्रेजेंटेशन। ऑब्वियसली आप इसमें एग्जांपल्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, पर आप साथ में नोट्स भी लेंगे, बुक्स के साथ नोट्स भी लेंगे, तो आपकी आधी प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। लेट्स मूव। अब हम एक रिएक्शन को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि वो रिवर्सिबल कैसे है। दैट रिएक्शन इज बिटवीन द आयोडीन एंड द हाइड्रोजन गैस। आयोडीन गैस जो है वो पर्पल कलर की होती है। आयोडीन गैस पर्पल कलर की होती है और हाइड्रोजन गैस आपकी कलरलेस होती है। इन दोनों के रिएक्शन की बात करेंगे। व्हेन हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन गैस रिएक्ट टुगेदर, इट विल मेक हाइड्रोजन आयोडाइड, जो के कलरलेस है, जो के कलरलेस होते हैं। सो
आयोडीन गैस जो कि पर्पल कलर की है और हाइड्रोजन गैस जो कि कलरलेस है, और प्रोडक्ट आपको मिल रहा है एक हाइड्रोजन आयोडाइड जो कि कलरलेस गैस है। हमने एक कलर्ड गैस का रिएक्शन इसलिए हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ताकि आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन का आइडिया हो जाए कि जब ये रिवर्स हो रहा है तो कलरलेस से फिर पर्पल में रिएक्टेंट्स में एक आयोडीन पर्पल है, तो फिर पर्पल में कैसे जा रहा है। तो दैट्स व्हाई हम एक गैस कलरलेस ले रहे हैं और एक कलर ले रहे हैं। रिएक्टेंट में कलर ले ली और आपका प्रोडक्ट कलरलेस हो गया, ताकि ऑब्जर्व कर सकें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन को। Let's see. Look at this equation. Hydrogen gas reacts with iodine gas. हमने इसे एक क्लोज फ्लास्क में डाल दिया क्योंकि दोनों गैसेस हैं। अगर आपका फ्लास्क क्लोज नहीं होगा तो ये स्केप कर जाएंगी। सो हाइड्रोजन गैस जो कि कलरलेस होगी, आयोडीन गैस जो कि पर्पल कलर की होगी, इसे हमने क्लोज फ्लास्क में डालना है ताकि स्केप ना कर जाए। आप इसे हीट करेंगे तो हीट करने पर आपको हाइड्रोजन आयोडाइड जो कि कलरलेस गैस मिल जाएगी। अब ये रिएक्शन हुआ है फॉरवर्ड रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड अ फॉरवर्ड रिएक्शन व्हेन द रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर एंड मेकिंग अ प्रोडक्ट। दिस इज अ फॉरवर्ड रिएक्शन। इस रिएक्शन को कहते हैं फॉरवर्ड। जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में जाते हैं तो रिएक्शन को कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। इक्विलिब्रियम के चैप्टर में कुछ टर्म्स हैं, ये आपको यूज करनी आनी चाहिए। इक्विलिब्रियम कंडीशंस, इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, ये टर्म्स बार बार यूज होंगी तो इसे अंडरस्टैंड कीजिए। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब है रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। अब आपके फ्लास्क में है हाइड्रोजन आयोडाइड। जब आप इस हाइड्रोजन आयोडाइड को हीट करेंगे, दिस इज अ कलरलेस गैस, आपके मीडियम में कलरलेस गैस है। अब जब आप इस कलरलेस गैस को हीट करेंगे देन दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन गैस एंड पर्पल कलर्स आयोडीन गैस। तो हाइड्रोजन एंड आयोडीन गैस में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। सो अगर मैं इस रिएक्शन को, नाउ दिस इज अ रिवर्स रिएक्शन। ये हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में जा रहे हैं, और जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जा रहा है, नाउ दिस इज अ रिवर्स रिएक्शन। इसे आप रिवर्सिबल रिएक्शन भी कह सकते हैं या रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड। फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया आपका रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, और आपका बैकवर्ड रिएक्शन हो गया जब प्रोडक्ट आपका रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है। So forward reaction and the backward reaction. Reversible reaction में दो reactions हो रहे होते हैं, forward reaction and the second one is backward reaction. अब इस reaction को मैं combine करके लिख रही हूँ. Look at here. आपकी बुक में लिखा हुआ है हाइड्रोजन गैस, आयोडीन गैस आर रिएक्टिंग एंड मेकिंग हाइड्रोजन आयोडाइड। आप डबल एरो देख रहे हैं तो दैट मीन्स दिस हाइड्रोजन आयोडाइड इज अगेन कन्वर्टिंग इनटू हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन गैस। क्लोज फ्लास्क में लेना था क्योंकि गैसेस हैं, अदरवाइज जो है वो गैसेस स्केप कर जाएंगी, फ्लास्क से निकल जाएंगी। सो लुक एट हियर, इस फ्लास्क में हाइड्रोजन गैस है और आयोडीन गैस है, ये दोनों कंबाइन होंगे। रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन हुई रिएक्टेंट्स की और आपका हाइड्रोजन आयोडाइड की गैस बन गई है जो कि कलरलेस होगी। अब ये कलरलेस गैस हाइड्रोजन आयोडाइड की डीकम्पोज होगी तो रिएक्शन होगा डीकम्पोजिशन। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एंड व्हेन द hydrogen iodide gas is converting into reactant hydrogen gas or iodine gas, the reaction is decomposition. So reversible is this. In this reversible reaction, two kinds of reactions are taking place. When the reactants are converting into product, the reaction is combination, and when the product is converting back into the reactant, the reaction is decomposition. एक और एग्जांपल देखें, आपको ये क्लियर हो जाएगा इक्विलिब्रियम का आइडिया। रिवर्सिबल रिएक्शन और क्लियर हो जाएगा। लुक एट हियर, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि ये मार्बल होता है, ये जो आपके घरों में भी लगा हुआ होगा मार्बल, ये उसका फॉर्मूला मार्बल का। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, मार्बल के पीसेस सॉलिड होते हैं।
सो ये जब डिकम्पोज होगा तो ये डिकम्पोज होगा कैल्शियम ऑक्साइड में जो कि सॉलिड होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है। अगर आप इस रिएक्शन को, इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एक ओपन फ्लास्क में करवाएंगे, लुक एट हियर, दिस फ्लास्क इज ओपन, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। और जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी तो अब इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं, जो ये प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स अब दोबारा तो कंबाइन होके नहीं बना सकते रिएक्टेंट, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो स्केप हो गई। सो इफ द कंटेनर, इफ द फ्लास्क इज ओपन, देन दिस रिएक्शन विल बी इरिवर्सिबल। तो ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है, वापस कन्वर्ट नहीं होगा रिएक्टेंट्स में, बिकॉज गैस तो स्केप हो गई, आपका एक प्रोडक्ट तो स्केप हो गया जिसने वापस कंबाइन होना था। सो नाउ दिस रिएक्शन इज irreversible reaction. Decomposition of calcium carbonate is irreversible reaction. लेकिन अगर यही सेम रिएक्शन, द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टेक प्लेस इन अ क्लोज फ्लास्क, आपने इसे क्लोज फ्लास्क में लिया और हीट करना शुरू कर दिया, तो now what will happen? It will convert into products, और प्रोडक्ट्स को स्केप करने की कोई जगह नहीं मिलेगी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को स्केप करने की कोई जगह नहीं मिलेगी क्योंकि आपका फ्लास्क क्लोज्ड है। तो जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट हीट देने पर डिकम्पोज होगी कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में, तो वो उसी मीडियम में मौजूद है, और उसके पार्टिकल्स दोबारा से रिएक्ट करेंगे, दोबारा से कंबाइन होंगे, दोबारा से आपस में कोलिजन के थ्रू कॉम्बिनेशन कर लेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे अगेन कैल्शियम कार्बोनेट में। सो दिस रिएक्शन इज बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन विच इज डिनोटेड विद द रिप्रेजेंटेड विद द डबल एरो। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है तो आपने ऊपर डिकम्पोजिशन लिखना है, ऊपर कॉम्बिनेशन नहीं लिख सकते। रिवर्स रिएक्शन आपका बैकवर्ड रिएक्शन में कॉम्बिनेशन है, सो दैट्स व्हाई नीचे कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है। ये छोटी छोटी चीजों का आपने ख्याल रखना है। सो कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड था डिकम्पोज हुआ कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और कार्बन डाइऑक्साइड इन गैस फॉर्म। अब कंटेनर क्लोज है तो ये दोनों प्रोडक्ट्स आपस में दोबारा से कंबाइन होंगे और कॉम्बिनेशन के प्रोडक्ट में आपको मिल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। सो दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। As I said, when the rate of forward reaction becomes equal to the rate of the backward reaction or the reverse reaction, the state will be chemical equilibrium state. Equilibrium state. So आपको ये definition याद होनी चाहिए. Look at here, इसे भी mark कर लीजिए. When the rate of forward reaction is the same as the rate of the reverse या backward reaction, the composition of the reaction mixture remains constant, is called chemical equilibrium state. ये आपको याद होना चाहिए. दूसरी डेफिनेशन आप मार्क कर लीजिए, दैट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट. When reaction doesn't stop, only the rates of forward and the reverse reaction becomes equal to each other but takes place in opposite directions. This is called dynamic equilibrium. Reaction stop नहीं हो रहा, जो रेट है फॉरवर्ड और बैकवर्ड का वो इक्वल हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है, दैट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट. क्योंकि जो आपकी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट है उसकी टू पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. एक तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो सकती है और दूसरी डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट हो सकती है. स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन प्रोसीड करने के बाद स्टॉप कर जाता है. ठीक है, हर तरफ से लगने वाली फोर्सेस इक्वल हुई, रिएक्शन स्टॉप हो गया. जैसे कि बिल्डिंग की एग्जांपल है, बिल्डिंग बनने के बाद खड़ी रहती है, वो गिर भी तो सकती है. दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, कि उस बिल्डिंग पर लगने वाली हर तरह की फोर्स इक्वल हो गई है, तो दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम. हर फोर्स लगने के बाद, हर साइड से फोर्स लगने के बाद वो इक्वल होगी, दैट्स व्हाई अब इक्विलिब्रियम अब चेंज नहीं हो रहा, वो स्टेबल है, वहां पर स्टैटिक है. लेकिन डायनामिक इक्विलिब्रियम में स्टैटिक नहीं होता, मूविंग होता है. रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में जा रहे हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जा रहे हैं, कंटिन्यू मोशन में है, और
देखने में बेशक ऐसे लग रहा है कि शायद रुके हुए हैं, लेकिन वो कंटिन्यूअस मूवमेंट में होते हैं, वो स्टॉप नहीं होते हैं। तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम की टू कंडीशंस हो गई। स्टैटिक इक्विलिब्रियम या फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं, और डायनामिक इक्विलिब्रियम ये भी आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। 4 डेफिनेशंस मैंने आपको मार्क करवाई हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसा ही है? यस मैम। ये आपकी कॉपी पे नोट होनी चाहिए, याद होनी चाहिए कल।